ریٹائرمنٹ کے بعد جاوید صاحب کی زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ جن بال بچوں کے لیے انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا، اب وہ لوگ انہیں اجنبی اور حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دھیرے دھیرے وہ زندگی کے کس مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ انہیں بھرے پڑے گھر اور شہر کے شور ہنگامے میں بھی سناٹے کا گمان ہوتا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتے اگر ان کی بیوی زندہ ہوتی تو کیا ان کی نگاہیں اسی طرح بدل جاتی؟ گہری رفاقت اتنی آسانی سے بے اتنائی میں تبدیل ہو جاتی؟ ان کا ماضی خوشگوار تھا، زندگی میں تلخیوں اور مسائل کی کمی نہ تھی، لیکن باہمی اتحاد اور پرخلوص افہام و تفہیم کے ذریعے وہ ان پر آسانی سے قابو پا لیتے۔ انہیں یاد آیا کہ انہوں نے اپنی قلیل آمدنی میں بھی اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا ہمیشہ خیال رکھا۔ اوور ٹائم، ہالیڈے اور پارٹ ٹائم جاب کر کے ان کی ضرورتوں کی کفالت کی، اپنی خواہشات اور تمناؤں کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہی تھا کہ ان کے تمام لڑکے آج اپنے پاؤں پر کھڑے تھے۔ لڑکیوں کی شادی معقول گھروں میں ہو گئی تھی۔ جاوید صاحب کو یاد آیا کہ جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے تھے، ان کے تمام لڑکے کس طرح اپنی ملازمتوں کے باوجود ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ انہوں نے کسی بیٹے کی تنخواہ سے کوئی مدد قبول نہیں کی تھی۔ ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے وقت انہیں دفتر کی طرف سے ایک بڑی رقم ملنے والی تھی، تقریباً 30 لاکھ روپے۔ ان کی نوکری میں پینشن کی سہولت نہیں تھی۔ ان دنوں ان کے تمام لڑکے ان کے آرام کے لیے بے حد فکر مند رہتے تھے۔ سب بیٹے آپس میں اسی بات پہ بحث کرتے رہتے کہ ابو ریٹائرمنٹ کے بعد میرے ساتھ رہیں گے۔ ایک کہتا میرے ساتھ تو دوسرا کہتا میرے ساتھ۔ جاوید صاحب ابھی انہی سوچوں میں گم تھے کہ چھوٹی بہو نے ان کے پاس ناشتہ بھجوا دیا۔ بھوک سے ان کی آنتیں کل بلا رہی تھیں۔ اب تمام بیٹوں کے ہاں انہیں سب سے آخر میں ناشتہ ملتا تھا۔ جب ان کے پوتے اسکول چلے جاتے، ان کا بیٹا دفتر کے لیے روانہ ہو جاتا۔ جاوید صاحب کی عادت تھی 7 بجتے ہی ناشتہ کر لینے کی۔ نوکری کے زمانے میں 7 بجے تک ان کا کھانا ان کے آگے لگا دیا جاتا تھا۔ اب تقریباً 11 بج چکے تھے۔ آلو کی بھاجی اور سوکھی روٹیاں، ان کی طبیعت مقدر ہو گئی، لیکن وہ اب ان کھانوں کے عادی ہو چکے تھے۔ گھی لگا پراٹھا تو ریٹائرمنٹ کے کچھ دنوں کے بعد تک ہی چلا، جب تک ان کے اکاؤنٹ میں فنڈ کے روپے ان کے نام رہے۔ جب ان کے بیٹوں نے زمین خریدنے، مکان بنانے، لڑکی کی شادی اور دوسرے مختلف بہانوں سے ان کے سارے روپے نکلوا لیے تو ان کی اہمیت اچانک ختم ہو گئی۔ جاوید صاحب باری باری تمام بیٹوں کے ہاں رہتے تھے۔ شروع میں سب کے ہاں ہر معاملے میں انہیں اولویت دی جاتی تھی۔ بعد میں سب کے سب دھیرے دھیرے آنکھیں پھیرنے لگے۔ پہلے جہاں تمام بیٹے جاوید صاحب کو اپنے ہاں لے جانے کے لیے اپنی باری کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے، قیام کے معینہ مدت سے 2-4 دن پہلے ہی انہیں لینے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ اب انہیں طرح طرح کی باتیں سنا کر روانگی کے وقت کی یاد دلائی جاتی تھی۔ جس بیٹے کے ہاں ان کے جانے کا نمبر ہوتا، اس کا دور دور تک پتہ نہ ہوتا۔ سال میں 3 مہینے وہ چاروں بیٹوں کے ہاں قیام کرتے تھے۔ جیسے تیسے زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ قیام کی مدت ختم ہونے کے بعد اب انہیں دوسرے بیٹے کے ہاں جانے کی بے حد دشواری ہوتی۔ کئی دنوں تک جب انہیں کوئی اپنے ہمراہ لے جانے نہ آتا تو تھک ہار کر تنہا چل پڑنے کا ارادہ کر لیتے۔ اسی طرح انہیں بڑی دقتیں پیش آتیں۔ بینائی کمزور پڑ چکی تھی۔ ایک زمانے سے بیٹوں کی بے توجہی کی وجہ سے موتیا بند کا آپریشن ٹلتا آ رہا تھا۔ اس معاملے میں اب انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ان کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں تھا۔ ہر آدمی اپنی گو نہ گو مصروفیات کا رونا روتا۔ ایسے میں بھلا کیوں کر وہ اپنا مسئلہ رکھنے کی ہمت کرتے۔ آپریشن کروانا زیادہ مشکل کام نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ ہسپتال میں ان کی تیمارداری کے لیے کون اپنا قیمتی وقت برباد کرتا۔ وہ اداس آنکھوں سے اپنے اطراف کا جائزہ لیتے۔ ہر چیز انہیں اپنی جگہ ساکت دکھائی دیتی، کہیں کوئی حرکت نہیں۔ دن کی صاف و شفاف روشنی میں بھی انہیں ڈھلتی ہوئی شام کا احساس ہوتا۔ ہانپتے ہوئے نڈھال قدموں سے جس کے ہاں پہنچتے، وہ ان کی آواز پہچان کر دروازہ کھولتے ہوئے سرد مہری کا مظاہرہ کرتا۔ آپ آ گئے ابا، بیٹا اکتائے ہوئے لہجے میں کہتا۔
जावेद साहब धीमी आवाज में कहते, बेटा तुम वक्त पर लेने नहीं आए, वहाँ बातें मुझे सुननी पड़ती हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या परेशानी थी? जावेद साहब अपनी बुझी बुझी आंखें बेटे की आंखों में गाड़ते। बेटा उनकी आंखों की ताब ना लाते हुए नजरें चुरा कर कहता, अब्बा आप तो जानते हैं दफ्तर में काम इतना बढ़ गया है कि छुट्टी लेने से अपना ही नुकसान होता है। मैंने फरहान से कहा था कि वो आपको जाकर ले आए, शायद वो इम्तिहान के सर पर होने की वजह से नहीं जा सका। अभी पूछता हूँ उस कमीने से। ये कहता हुआ बेटा अपने कमरे में चला जाता। जावेद साहब अपना जंग आलूद पुराना बक्सा बरामदे में रखते। हर बेटे के घर में अब उन्हें कमरे से मुंतकिल करके बरामदे में जगह दे दी गई थी, जहां उनके पोते पोतियों का शोर उनके कानों के पर्दे फाड़ता था। उन्हें एक पल भी चैन नसीब ना होता। बच्चों से प्यार करने को किसका जी नहीं चाहता, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। उनका खेल कुछ ही देर में शोर गुल में तब्दील हो जाता। उन्हें लगता कि सारा घर जलजले की जद पर है। जावेद साहब सोचते, यही बेटे उनकी आंखों का नूर और बुढ़ापे का सहारा थे। उनके मुस्तकबिल के लिए उन्होंने अपना सारा माजी दांव पर लगा दिया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर उनकी बहू की बकबक शुरू हो गई। आ गया बुढ़ा चाय का खर्च बढ़ाने, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जावेद साहब चौंक से जाते। बहू की हकारत अमेज बात उनके लिए थी या दस्तक देने वाले के लिए? उन्होंने खुद को तसल्ली दी, हो ना हो बहू ने ये बातें आने वाले के लिए कही हैं। उनके सिलसिले में अभी इतने घटिया सलूक की नौबत नहीं आई थी, लेकिन उन्हें ख्याल आया आने वाले के बहाने ये सब कहीं उन्हें ही तो नहीं सुनाया जा रहा। जावेद साहब ने एक पोते को आने वाले के बारे में पता लगाने के लिए कहा। बहू ने तंग मिजाजी के साथ कहा, वही आपके दोस्त कमर साहब हैं, उन्हें कोई और काम नहीं कि आपका वक्त बर्बाद करने चले आते हैं। जावेद साहब बाहर आए। दोनों दोस्त गले मिलकर अपने अपने सीने का बोझ कम करने की कोशिश करने लगे। क्यों भाई जावेद, क्या हाल है? क्या पूछते हो रिटायरमेंट के बाद हाल चाल? बेटों की नज़रें हमें पहचानती हैं, बस यही गनीमत है। ये बात तो है भाई, हम तो समझते थे कि तमाम जिम्मेदारियों से सबकदोश होने के बाद जिंदगी का आखिरी दौर सुखो चैन का सांस लेते हुए गुजरेगा, लेकिन अब तो खुद अपनी ज़ात जिंदगी का सबसे बड़ा आज़ाब बन गई है। कमर साहब ने गला साफ किया और फीकी हंसी हंसने की कोशिश की। साफ लगता था कि उनकी हंसी के पीछे दर्द का दरिया मौजन है। फिर धीमे लहजे में बोले, दोस्त क्या ज़माना है, माँ बाप कितने बच्चों की परवरिश करते हैं, बाद में सारे बच्चे मिलजुल कर भी माँ बाप की कफालत नहीं कर पाते। कमर साहब की आंखें कहीं खो गईं। जावेद साहब भी ये बात सुनकर सोचों में गुम हो गए। अचानक उनको अपने अंदर से आवाज़ आई, शायद समाजी इर्तिका के पेचीदा अमल का ये लाजमी नतीजा है। आगे बढ़ते हुए चक्के के पीछे गर्द उड़ती ही है। दोनों बहुत देर तक यूं ही पुरानी यादें ताज़ा करते रहे, मगर अंदर से चाय नहीं आई। कमर साहब ने जाने के लिए उठना चाहा। जावेद मियाँ ने उन्हें चाय के लिए रोका, फिर अंदर गए। दबी जबान से बहू को चाय के लिए कहा। बाहर आकर बैठे। कुछ वक्त गुजर गया मगर चाय ना आई। जावेद साहब फिर अंदर गए। इस बार डरते डरते उन्होंने पोते से अपनी माँ को चाय के लिए याद दिलाने को कहा। फिर जावेद साहब बाहर आ गए। इसी तरह जावेद मियाँ कई बार अंदर गए, बाहर आए। कमर साहब ने कई बार उठना चाहा और जावेद साहब ने उन्हें बिठाया कि चाय पीकर जाना, मगर चाय नहीं आई। बिलाखिर कमर साहब ने दोस्ती का भरम रखने के लिए कह ही दिया, जावेद मियाँ मैंने एक ज़रूरी काम जाना था, मैं तो भूल ही गया था, चाय उधार रह गई, फिर कभी पी लूँगा। रुखसत होते वक्त दोनों की आंखें भीग गई थीं, दिल पर मनो बोझ था। दोनों के कदम लड़खड़ा रहे थे, हाथों में रेशा था, होंठों पर अजीब कपकपाहट। किससे कहें, क्यों कर कहें, कहने से क्या होगा? बेटा उनकी बातों पर कान धरेगा, बहू की सरजंश करेगा, या एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा। जावेद साहब अंदर आकर अपने साल खुर्दा पलंग पर लेट गए। उनके हाथ पेशानी पर थे, आंखें बंद थीं, जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। मैंने सारे बच्चों की अच्छी तरह परवरिश की, क्या सारे बच्चे मिलकर भी
मुझे सहारा नहीं दे सकते? अचानक उनके जहन में सवाल उठा, वो भी तो किसी के बेटे थे, क्या उन्होंने अपने माँ बाप की खबरगिरी की थी? उनके दिल में हूक उठी। वालिद की वफात के बाद अम्मा का कितना ख्याल रखा था शुरू शुरू के दिनों में, मगर फिर इस मोहब्बत और देखभाल के जज्बे पर मसरूफियात की गर्द पड़ने लगी। उन्हें याद आया कि कभी कभी अम्मा इस बात पर नाराज़ होकर खाना पीना छोड़ देती थीं कि मैं महीनों हो गए उनके कमरे में उनका हाल अहवाल पूछने दाखिल नहीं हुआ। वो मेरी सूरत देखने को तरसती थीं और मैं सिर्फ उनके शिकवों पर सर झुकाकर रह जाता और हर बार वादा करता अब ऐसा ना होगा, और हर बार भूल जाता। फिर अम्मा ने शिकवे शिकायतें करना छोड़ दिया। अगरचा मेरी बीवी उनके खाने पीने और आराम का हर तरह से ख्याल रखती थी, मगर औलाद तो औलाद होती है। मुझे देखने के लिए दिन रात तड़पती थी, पर मुझे उनकी फिक्र कहाँ थी। मैं तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल बनाने में दिन रात मसरूफ़ था। उनकी बातें याद तो आती, मगर मुझ पर कोई असर ना होता था। फिर एक रात अम्मा की तबीयत ख़राब थी। मेरी बेगम ने उन्हें दवाई देकर सो जाने को कहा, मगर अम्मा मुझसे मिलना चाहती थीं। बेगम ने मुझे ऑफिस फ़ोन भी किया कि घर आ जाएं, अम्मा की तबीयत ख़राब है, मगर मैंने ये कहकर टाल दिया कि ऑफिस काम ज़्यादा है, मैं लेट आऊँगा। तुम अम्मा को दवाई दे दो, मैं अम्मा से सुबह मुलाकात कर लूँगा। उस रात अम्मा सोईं तो फिर कभी नहीं जागी। मैं कितना तड़पा था, कितनी बार अपने वादे वफा करने की कस्में खाई थीं, मगर उस दिन वो सचमुच की रूठ गई थीं। मैं लाख अम्मा अम्मा पुकारता रहा, मेरी एक ना सुनी और चली गईं। है काश, मगर अब क्या फ़ायदा? इस सवाल का वाज़ेह जवाब उनके पास नहीं था। उनको ख्याल आया ये रिवायत बदलनी चाहिए, किसी भी कीमत पर बदलनी चाहिए। इस नस्ल में नहीं तो आइंदा नस्ल में, बेटे के ज़रिए नहीं तो पोते के वसीले से। जावेद साहब की आंखों में उम्मीद की किरण झिलमिलाने लगी। नकाहत के बावजूद उन्हें अपने अंदर एक नई ताकत का एहसास हुआ। एक नई तवानाई के साथ वो उठे। अपने सबसे छोटे 1 साल के पोते को उन्होंने प्यार से पुकारा, उमर आजा बेटे, दादा के साथ खेलेगा, जिंदगी गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। पाँव पाँव बढ़ते डगमगाकर चलते हुए पोते ने उनकी तरफ गौर से देखा। जावेद साहब ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उमर करीब आया। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। क्यों बेटे, तू तब्दीली लाएगा ना? पोते को दादे की बूढ़ी बाहों में कुछ राहत मिली। फिर उन्होंने उमर को सर पर बिठा लिया। अचानक उसने उनके चेहरे पर पेशाब करना शुरू कर दिया। जावेद साहब के चेहरे का रंग अजीबो गरीब था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा लग रहा था उन पर घड़ों पानी पड़ गया हो। फिर उन्होंने सोचा उनके चेहरे के साथ पोते का ये सलूक एक तरह से ठीक भी था। मुमकिन है कि इस तरह मज़मूम रिवायात के गर्द आलूद चेहरे की ततहीर हो जाए। छोटी बहू ने बावर्ची खाने से ये नज़ारा देखा। उसकी समझ में नहीं आया कि उसके ससुर हंस रहे थे या रो रहे थे। फिर वो अपने कमरे में चले गए और अगले दिन दारफानी की तरफ कूच कर चुके थे। शायद माँ से अपने लाल की ये तजलील बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तो वो खुद आई थीं अपने बेटे के गमों को हल्का करने, उसे अपनी कोख में छुपाकर हर गम से आज़ाद करने। कहते हैं ना, मरते हुए इंसान के मुंह से अपने प्यारों का नाम ही निकलता है। और जावेद साहब के आखिरी अल्फाज माँ 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 जी ही थे।